name is Nishant. Today we are going to discuss the chapter number 5, diphthongs, from the Pitman shorthand book. Is that clear? Okay. Now diphthongs. As you know that there are 4 diphthongs in English shorthand. Okay. There are 4 diphthongs. Now what is diphthongs? Diphthongs का मतलब क्या है? So diphthongs. So diphthong is a union of 2 vowel sounds in a one syllable. 2 vowel sound in a one syllable. It means what? एक ही लेटर में 2 vowel sounds आते हैं तो हम diphthongs यूज करते हैं. ठीक है. So there are 4 diphthongs and there are 4 signs for the diphthongs. Okay. Now see which are the 4 diphthongs. The first one is I. The first one is I. The first one is I diphthongs. Okay. So I, for the I, the sign is, this is the sign for the diphthong I. Is that clear? Okay. Here is our first diphthong. Now the second diphthong is ow. The sign for the ow is like this. Okay. Like this. Ow. Cow. ठीक है. Now sound in a word cow. Cow. Ow. ठीक है. I. Tie. Time. I. ठीक है. So the sound of I in a word like time. ठीक है. So the next diphthong is third number. It's a oi. Oi. The sign for the oi is like this. ठीक है. Is like this oi. Toy. The sound of oi in a word toy. Ow in a word like cow. I. Tie. Time. ठीक है. So the sound in a word like, you know that the sound is important in a diphthongs. Okay. Now when the sounds like I, we have to put the sign like this. And when the sound is ow, we have to put a sign like this. Is that clear? Okay. Now the fourth diphthong is u. Like this u. Okay. Now the sign for the u diphthong is like this u. Mew. Okay. Mew. Is that clear? Okay. Mule. M-U-L-E, mule. The sound of U in a word mule. ठीक है. Mew. ठीक है. So here is the fourth diphthong U. Is that clear? Now what we learn in this chapter, diphthongs. There are 4 diphthongs and there are 4 signs for the diphthongs. Is that clear? The first one is I, ow, oi, and U. ठीक है. Now see the example. For example, you can better understand it. ठीक है. So for example, tie, ow, cow, cowed. ठीक है. Is that clear? Cowed. Wow. Oi, toy. Is that clear? Toil. Is that clear? You, mule. Is that clear? Mule. Due, duty. D-U-T-Y, duty. Is that clear? Now see the example. Now here is a 2 example of I. The sound of I, tie. ठीक है. Now here is a sign. Here is a diphthong sign for tie. Now here is our tie. Here is a T. And the first place vowel tie, so it's always written above the line, so it's our tie. Here put the sign tie. Is that clear? Now the second one is time. फर्स्ट प्लेस diphthong है. ठीक है. vowels का फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है तो क्या लिखना है? above the line. So here is our tie. Here is a tie और ये हमारा tie. ठीक है. So ये हो जाता है हमारा tie. Is that clear? Okay. Now see the next example. Ow, cow and cow. The sound in a word cow and cow. Now see the example. Cow, cowed.
ठीक है, सी काउ। नाउ हाउ कैन यू ड्रॉ द आउटलाइन फॉर काउ के, आपको तो पता है, ठीक है। सो क्या होगा, व्हाट, काउ, काउ क्या होगा, इज दैट क्लियर, काउ ऑन द लाइन, ठीक है। के निकलना है, सी नहीं, के, ठीक है, ये हो गया के। और आओ के लिए डिफॉर्म क्या है, थर्ड प्लेस वॉवेल है, ऑन द लाइन आएगा काउ, इज दैट क्लियर, काउ, काउ। उसके बाद में है काउड, ठीक है। सो काउड क्या है, के, ठीक है, के और ये डी, और ये हमारा हो जाता है आउ, काउ, आउ, 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 काउड, इज दैट क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑय, ऑय। नाउ ऑय क्या है, फर्स्ट प्लेस डिप्थोंग है, ठीक है। सो ऑय, टॉय एंड टॉय, ठीक है। सो सी द एग्जांपल, टॉय, टॉय, टी, ठीक है, ये जो हमारा टी, और हमें क्या है होना, साउंड ऑय। सो ऑय के लिए हमें, हमारे पास कौन सा साइन है, डिप्थोंग का साइन कौन सा है, नाउ द एरो, टॉय, इज दैट क्लियर, टॉय। हियर इज द साइन like in a downward direction and this one is in a right one direction, is that clear? Okay, so the sign express the sound of I and this one is express the sound of I, is that clear, toy. Now the next one is toil, 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 it's a T, it's a L, toy, and here is a sign, diphthong sign, toy, get it? The outline is above the line, above the line, okay. आओ के लिए क्या है, थर्ड प्लेस है, ठीक है, थर्ड प्लेस है, इसकी वजह से हमें क्या करना है, थ्रू द लाइन, ठीक है, थ्रू द लाइन। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, यू, ठीक है। सो यू के लिए साइन क्या है हमारे पास, थर्ड प्लेस पे यू, ठीक है। सो यू क्या है, म्यूल, MULE, म्यूल। हाउ कैन यू ड्रॉ द आउटलाइन फॉर म्यूल, ओके। नाउ सी म्यूल, म्यूल थर्ड प्लेस है म्यूल, ठीक है। थर्ड प्लेस यानी क्या होता है, थ्रू द लाइन, ये हो गया हमारा M और ये हो गया हमारा L, और U के क्या है, ये हो गया U, ये हो गया U, साउंड U, म्यू, MU and L, MUL, म्यूल, इज दैट क्लियर। नाउ ड्यूटी, ठीक है। सो ड्यूटी, हाउ कैन यू राइट ड्यूटी, D, T कंसोनेंट एंड U, ठीक है। तो U इज आवर डिप्थोंग साइन, ठीक है, इज अ डिप्थोंग साउंड, सो हियर इज अ U, इज दैट क्लियर। सो हियर आर द 4 diphthongs in English shorthand. The first one is I, like sound I in the word time and time. The sound in a word like cow and cowed. Oi, here is a sign for oi, ठीक है, diphthong sign I in the sound oi in a word like toy and toil, is that clear? Okay, now you, it's a 4 diphthong, the sign is U, it's a semicircle, ठीक है, semicircle in a word, the sound U of in a word like mule and duty, is that clear? Okay, so learn it, memorize it, okay. Now see the example, item. Now how can you write the outline for item, ideal, I am, noun, bow, due, Matthew, Q, argue, and mu, and it's a new, ठीक है। So now item, I it's a item. How can you draw the outline, I it's a first place diphthong, ठीक है। So it's a T और M, so I, ठीक है। साउंड पहले आ रहा है, ठीक है, वॉवेल साउंड पहले आ रहा है, तो हमें स्ट्रोक के पहले पढ़ना है, तो आइटम, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आइडल, ठीक है। सो डी, पहले वॉवेल साउंड है, डी और एल लिख लो, डी और एल, ठीक है। तो आइडल,
ठीक है, ये हमारा हो जाता है आइडल। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आइल, आइल, सो हाउ कैन यू राइट आइल? आई के लिए क्या है हमारे पास, ठीक है, दिस साइन, ठीक है। सो ये साइन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एब्रिवेटेड साइन यानी शॉर्टकट्स जो है वो यूज करना है साइन का। तो ये हमारा जाता है ऐसे पूरा नहीं निकालते हुए, सिर्फ हमें आई और एल, ये हो जाता है हमारा आई। इज दैट क्लियर? एस साइलेंट है। उसके बाद में आई एम, ठीक है। आई के लिए क्या है हमारे पास, साइन है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एब्रिवेटेड फॉर्म यूज करना है, ठीक है, जॉइन, लेकिन ऐसा और ऐसा निकलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एब्रिवेटेड फॉर्म शॉर्टकट फॉर्म यूज करना है। तो शॉर्टकट फॉर्म क्या है, तो पूरा ऐसी साइन नहीं निकालते हुए सिर्फ शॉर्टकट निकालना है। ये हो गया आई और ये हो गया एम, तो ये हो जाता है हमारा एम। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज नाउ। The next one is now. How can you draw the outline for now? Okay, ठीक है। So now, आओ क्या है हमारा, थर्ड प्लेस वॉवेल है, ठीक है। तो n पहले है तो n निकाल लो। यहाँ पे भी हमें एब्रिवेटेड फॉर्म यूज करना है औ का, ठीक है। ये हमारा n हो गया। और औ के लिए कौन सा वॉवेल, कौन सी साइन है, दिस वन। तो ये पूरी नहीं निकालते हुए, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एब्रिवेटेड फॉर्म, शॉर्टकट फॉर्म, और ये हो जाता है हमारा नाउन। इज दैट क्लियर? उसके बाद में बो, बो, ठीक है। तो क्या है, थर्ड प्लेस है, ये पूरा निकालना है, ठीक है। तो क्योंकि अगर ऐसा निकालेंगे तो ये बन जाता है हमारा आई, ठीक है। तो ये कन्वीनियंस नहीं है, कन्वीनियंट हमारा हम स्ट्रोक नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे साइन पूरा निकालना है, बो, लाइक दिस। ओके, ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्यू, ड्यू, यू, ठीक है। यू है फोर्थ नंबर का डिफथॉन्ग है हमारा। सो ड्यू निकालना है, उसे भी हमें ज्वाइन करना है स्ट्रोक्स को, ठीक है। इसमें हमें क्या शो करना है, क्या है, देखिए अभी ये ऐसे साइंस निकाले हैं, ये जो स्ट्रोक्स है, हमें ये जो हमने साइन सेपरेट लिखे हैं, सेपरेट, ठीक है। तो इसे हमें कंबाइन करना है। कंबाइन करना क्या है, द डिफथॉन्ग साइंस में बी जॉइन टू द कंसोनेंट, टू द कंसोनेंट इन मेनी वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो साइन है ऐसे नहीं निकालते हुए हमने ये टाइम अगर निकालना है तो, ठीक है, फॉर स्पीडी राइटिंग, ठीक है। सो ये हो गया हमारा टाइम, ठीक है, ये टाइम, ये टाइम, ठीक है। आइडल निकालना है तो ये आइडल, ये हो जाता है हमारा आइडल, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें शॉर्टकट फॉर्म यूज करना है, ठीक है। आई एम, आई, ठीक है, नाउ डायरेक्ट, ठीक है, बाओ, ठीक है, बो, ठीक है, ड्यू क्या है, डी, और यू क्या है, यू, बस यहाँ से ज्वाइन कर देना है ड्यू। नहीं तो फिर आप ऐसे निकालेंगे डी और बाद में यू निकालेंगे, तो ये क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस जाती है, ठीक है। लेकिन हमें शॉर्ट हैंड में क्या करना है, हमारे स्पीड से लिखना है, ठीक है। तो ये स्पीड्स कवर करने के लिए तो हमें डायरेक्ट ऐसा निकालना है, ठीक है, ड्यू। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा ड्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मैथ्यू। अभी मैथ्यू, मैथ्यू क्या है, ठीक है, म्या, ये हो गया हमारा म्या। थ्यू, टीएच पता है, टीएच, तो ये हो गया थ्यू, यू, थ्यू, मैथ्यू। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मैथ्यू। उसके बाद में है क्यू और आर्ग्यू। नाउ सी द क्यू एंड आर्ग्यू। क्यू, के, ठीक है, ये हमारा ऑन द लाइन के, और ये यू, के, यू, ठीक है, क्यू। आर्ग्यू, ये हो गया आ, और ये हमारा ग्यू, आर, ये यू, आर्ग्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया है यू साइन की। यू साइन की डायरेक्शन क्या है, लाइक दिस, और हमने क्या कर दिया है, ऐसे लिखी है। तो फॉर कन्वीनियंस ऑफ जॉइनिंग द स्ट्रोक्स यू कैन ऑल्सो राइट द सेमी सर्कल लाइक दिस, ठीक है। उसे हमने सेमी सर्कल राइट डायरेक्शन पे भी निकाला तो भी चलता है, ठीक है। सो क्यू, आर्ग्यू, लेकिन यू का हमारा जो डिफथॉन्ग है उसकी साइन कैसी है, उसकी साइन लाइक दिस, ठीक है, ऐसी है। तो ऐसे ही निकालते हुए आपने ऐसे भी निकाले फॉर इजीली जॉइनिंग द स्ट्रोक, ठीक है। तो इसके लिए भी वो भी चलता है। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज म्यू। सो हाउ कैन यू राइट म्यू? सेम एज इट इज, जैसे साइंस यहाँ पे है यू है तो म्यू, ये एम, यू, म्यू। अब यहाँ पे देखिए
ठीक है, ये हो गया म्यू। यहाँ पे देखिए अभी न्यू है, तो न्यू कैसे निकालना है, न्यू जैसे ये नाउ है, नाउ वैसे ही न्यू है, तो न्यू, ठीक है। देखिए क्या आएगा, उसकी आउटलाइन क्या आएगी, न्यू। सो न्यू यानी सेम एज इट इज एन निकालना है, और यू ये नी और यू, ठीक है, लाइक दिस, ये हो जाता है हमारा न्यू। इज दैट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट वन इज triphones. Now what are the triphones? Which are the triphones? Okay, so how can you identify the triphones? So a small tick attached to a diphthong sign, attached to the diphthong sign, represent any vowel sound immediately following the diphthongs. Is that clear? अगर स्मॉल टिक हमें यूज करना है, लाइक दिस स्मॉल टिक, डिप्थोंग साइन को अगर स्मॉल टिक यूज करना है, कब करना है, अगर डिप्थोंग साउंड के बाद में इमीडिएटली कोई भी अगर वॉवेल आता है तो हमें स्मॉल टिक से उसे क्या करना है, दिखाना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए अभी कैसा है, फॉर एग्जांपल सी द एग्जांपल डिप्थोंग, एज यू नो दैट देयर आर 4 डिप्थोंग साइंस, देयर आर 4 डिप्थोंग्स आई, आउ, ऑय एंड यू। द साइंस इज फॉर आई साइंस, आउ, ठीक है, ऑय एंड यू, ठीक है। हियर आर द साइंस, हियर आर द 4 साइंस फॉर द डिप्थोंग्स। नाउ अगर इसे अगर डिप्थोंग्स के साथ में अगर दूसरा कोई भी अगर वॉवेल आता है तो हमें उसे स्मॉल टिक देना है, ठीक है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है। तो ये है हमारा रूल, ठीक है। नाउ सी द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल डायरी, इज दैट क्लियर, लॉयल, ठीक है। सो डायरी एंड लॉयल, सी द एग्जांपल डायरी, डाई, ठीक है, डी, री, डाई, आई आ रहा है तो हमारा फर्स्ट डिप्थोंग है तो डाई, और डाई के डी के बाद में हमारा क्या आ रहा है, डी के बाद में हमारा वॉवेल साउंड आ रहा है, इट मीन्स डिप्थोंग साउंड आ रहा है, तो आई, डाई, ये हो गया हमारा आई, ठीक है, डाई। लेकिन यहाँ पे अ है, डाई अरी होता है, ठीक है, ओ आता है तो ओ क्या है हमारा वॉवेल, तो इसे दिखाने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे एक स्मॉल टिक करना है, तो ये बन जाता है हमारा डायरी। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द सेकंड वन इज लॉयल, ठीक है, लॉयल, ये एल और एल, ऑय है यहाँ पे, ऑय, तो ऑय के लिए क्या करना है, देखिए अभी ऑय के लिए क्या है हमारे पास में, ये साइन है आई, ठीक है, तो ऑय, ये यहाँ पे भी अ है यानी साउंड है, वॉवेल साउंड, तो इसे स्मॉल टिक कर दीजिए और यहाँ इसका भी साउंड आ जाएगा, लॉय का तो आ गया, लॉय अल, ठीक है, अल का भी साउंड आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल टिक कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉयल। सो दिस साइंस आर द ट्राइफोन्स। इज दैट क्लियर? ओके, हाँ। द नेक्स्ट रूल इज फॉर डब्ल्यू, एब्रिविएटेड डब्ल्यू, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। अभी डब्ल्यू के लिए क्या है, हमें डब्ल्यू हम कब यूज करेंगे, देखिए क्या है इसमें। नाउ सी द एग्जांपल, द इनिशियल साउंड ऑफ डब्ल्यू क्या करता है, बिफोर KGMR, before KGMR, it means KGMR is represented by a right semicircle, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल सेमीसर्कल यूज करना है काय के लिए, W के लिए, ठीक है, द इनिशियल साउंड ऑफ W, ठीक है। सो हमें लिखना है वेक, ठीक है। सो हाउ कैन यू ड्रॉ द आउटलाइन फॉर वेक, ठीक है, तो ये हमारा K और ये हमारा हो जाता है W और ये होता है A, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन राइट वेक, इज दैट क्लियर, गे, वेक, ठीक है। द सी द नेक्स्ट एग्जांपल, इट्स अ वीग, ठीक है, वीग, इट्स हमारा, ये हमारा क्या है W और ये हो जाता है गी, ठीक है, ये है E, वीग। इज दैट क्लियर?
अगर इनिशियल में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इनिशियल में अगर W आता है तो W के लिए सेमी सर्कल निकालो लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अगर W के साथ पहले बिफोर अगर वॉवेल आता है तो फिर हमारा जो W के लिए जो स्ट्रोक्स दिए हैं हमारे पास में कंसोनेंट स्ट्रोक ये वाला, तो यही निकालिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है देखिए, फॉर एग्जाम्पल अवेक, अवेक, ठीक है। तो हमारे पास W है और K है, तो हमने ये W क्यों यूज किया है, यहाँ पे सेमी सर्कल यूज क्यों नहीं किया है अवेक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, वॉवेल दिया है, तो वॉवेल के लिए हमें क्या करना है, वॉवेल के लिए हमें ये जो कंसोनेंट स्ट्रोक दिया है वो यूज करना है, अवेक। ये हो जाता है हमारा अवेक। कब निकालना है, जब हमें वॉवेल स्टार्ट वर्डिंग आते हैं W के साथ में, ठीक है। अगर W से स्टार्ट होता है कोई भी वर्ड तो आप सेमी सर्कल यूज कर सकते हैं KGMR के साथ में। इज दैट क्लियर? ओके। अगर नहीं आता है, वॉवेल साउंड आता है, तो फिर क्या आता है हमारे पास में, ये स्ट्रोक, W का स्ट्रोक। इज दैट क्लियर? ओके। In the next part you have to solve the exercise number 17 and 18. Okay, clear? All doubts clear? Okay, you have to practice the exercise number 17 and 18. After that we see the grammar in this chapter of diphthongs. Is that clear? Okay, thank you.